صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین هم ارکان الایمان وامناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء ان تقال الارض وبهم يمسك الله الارض ان تمید باهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت باهلها لا سيما بقية الله. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی و ابی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج اس عشرے کی آخری مجلس ہے اور ہمیشہ کی طرح کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک جب موضوع کو کھولا جاتا ہے تو ظاہر ہے 8-9 دنوں میں وہ ایک موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھا جائے، جو تفصیلات ممکن ہوں ان 8-9 دنوں میں اس کو بیان کیا جائے. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور اس سوچ کو بیدار کرنا کہ یہ موضوع بھی ہے اور اس پر بھی پڑھا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے، اور پھر صرف انفارمیشن اکٹھی کرنا کبھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد منزل آتی ہے عمل کی کہ انشاءاللہ پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کل آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا وہ قول رکھا تھا کہ امام علیہ السلام اس معاشرے کی حالت کو ہمارے سامنے بتاتے ہیں، اور امام نے اس طرح بیان کیا، توجہ، الا وان هؤلاء القوم قد لزموا الشیطان وتولوا عن طاعت الرحمن، کہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی تحریک کو انجام دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیا، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے کربلا گئے، قربانیاں دی، بیٹوں کو قربان کیا، بہنوں کی اسارت کو قبول کر لیا، اور پھر جیسا کہ بتایا کہ کبھی یہ نہ تصور کریں کہ یہ سب کچھ ایک اتفاقیہ چیز تھی، ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا چلا گیا، اور آخر یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کربلا پہنچ گئے. چونکہ ادھر 72 تھے، ادھر 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 سے 1,00,000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے ایک نیچرل سی بات ہے کہ ان سب نے شہید ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اور انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے. امام علیہ السلام شعوری طور پر مکمل ارادے کے ساتھ جانتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں. امام علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں؟ امامت کے ہر قدم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی فلسفہ، کوئی سبب، کوئی ریزن موجود ہوتی ہے. امام علیہ السلام نے ہر جگہ اپنا وہ ہدف بتایا، اپنا وہ مقصد بتایا کہ اس مقصد کربلا یہ ہے کیا. کل آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا وان هؤلاء القوم قد لزموا الشیطان. کیوں امام علیہ السلام وہاں تک گئے؟ اس لیے کہ وہاں پر اس معاشرے کے اندر شیطان کی اطاعت ہو رہی تھی. وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، رحمان کی، پروردگار کی اطاعت سے
منہ پھیر لیا گیا تھا، کوئی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تھا. ابھی کل ہی میں نے پڑھا کہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آج کل کے زمانے میں ایسی چیزیں ہیں. رسول خدا کے صرف 50 برس گزرنے کے بعد مدینہ کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ مدینہ شہر کے اندر، یعنی جو مدینہ الرسول ہے جہاں پر قرآن کا نزول ہوا ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک گانے بجانے والے کو بلایا گیا، یعنی آج کل کی زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ کنسرٹ کیا گیا، اور اتنا رش ہوا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیچے والا ہال بھر گیا اور اوپر چھتوں پر لوگ بیٹھ گئے. اور آخر چھت بھی ظاہر اس زمانے کی تھی، اتنی مضبوط نہیں تھی، گری، بہت سے لوگ زخمی ہوئے. سوچئے کہ اسی مدینہ کے اندر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہاں، قَدْ لَزَمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے. وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کی اطاعت سے منہ موڑ دیا گیا. وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، ہر طرح کا علل اعلان گناہ ہو رہا ہے. علل اعلان یعنی کوئی بھی جب گناہ کو کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے میں کسی قسم کی شرم اور جھجک کو محسوس نہیں کیا جاتا. یہی سب سے بری بات ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے تو اس میں اسے کوئی شرم یا جھجک محسوس نہ ہو. وہ جیسا کہ ائمہ کی احادیث ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، اگر وہاں پر کوئی بچہ آ جائے تو انسان اس سے بھی شرم محسوس کرتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا سے اس شرم اور جھجک کو محسوس نہ کرے اور علل اعلان گناہ کر رہا ہو. بہرحال اس وقت مدینہ، مکہ اور ایک اسلامی سوسائٹی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ علل اعلان گناہ ہو رہا ہے. امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ وہ مبالغے سے کام لیتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، نہیں. ائمہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو واقعاً وہ حق ہوتی ہے. امام نے کیا کہا کہ اظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، علل اعلان گناہ کیا جانے لگا ہے. اور پھر جو جہاں پر کل رکی تھی، احلل الحرام وحرم الحلال، حلال کو حرام بنا دیا گیا، حرام کو حلال بنا دیا. یہ کسی سوسائٹی کی سب سے بری اور آخری حالت ہے کہ وہاں پر حلال کو حرام بنا دیا جائے اور حرام کو حلال سمجھ لیا جائے. مثلا صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک وقت ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے کینسر ہے، مجھے یہ بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو قبول کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے پرہیز کرے گا. ایسا ہی ہے نا، پرہیز کرے گا، واک کرے گا، میڈیسن لے گا، کھانے پینے میں احتیاط کرے گا. لیکن اگر انسان اس بیماری کو قبول ہی نہ کرے، کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ نہیں. علاج اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اس بیماری کو بیماری سمجھے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں حلال سمجھا جا رہا ہے. میں مثال نہیں دینا چاہتی، بہرحال کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. اور ہمیشہ جب ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مثلا ہمارے بڑوں نے کی ہے. معذرت کے ساتھ اس دن بھی کہا تھا کہ پلیز اب اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ مثلا ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہماری اماں یہ کرتی تھی، ہمارے خالہ یہ کرتی تھی. اس چیز سے باہر نکل آئیں. کیا کریں؟ آج معاشرہ علمی معاشرہ ہے، علم ترقی کر چکا ہے، آپ سب کے پاس کتابیں موجود ہیں. ہاں، اگر کوئی چیز ائمہ کی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے، ائمہ کی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جو ائمہ نے جس کی تصدیق کی ہے تو اس کو بے خوف و خطر انجام دے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی وہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کا کہیں روایات میں ذکر نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے بزرگوں سے سنا اور اسی کو انجام دینا شروع کر دیا اور بڑے فخر سے انجام دے رہے ہیں، خدارا ایسا نہ کیجئے. یہی چیز بدعت کہلاتی ہے کہ جس کو دین سمجھ کر، حلال خدا سمجھ کر کرنا شروع کر دیا اور دوسرے کے آگے بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ بھی اسی طرح کریں. خدا کے لیے ایسی چیزوں کو معاشرے کے اندر رواج نہ دیں.
बिद्दत हराम है और इसकी सजा जहन्नुम है, उस वक्त जो इस्लामी माशरे की जाहिरन जो नाम नेहाद माशरा था, उसकी हालत क्या थी? अहल्लुल हराम व हर्रमुल हलाल, हलाल को हराम समझा जा रहा था, हराम को हलाल समझा जा रहा था। कैसे? मसलन क्या कोई गैर अरब किसी अरब लड़की से शादी कर सकता है या नहीं? क्या इस्लाम में इसकी ममानियत है? मना है इस्लाम में। जनाबे मुख्तार के लश्कर में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद थे कि जिन्हें मवाली कहा जाता है। मवाली, वैसे तो हम भी जैसे कहते हैं कि जो अली का आशिक है, मवाली है, हलाली है, दो माना है। एक मवाली वो कि जो विलायत पर अकीदा रखता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत पर अकीदा रखता है, एक मवाली उसे कहा जाता है। और दूसरा, जब आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि जैसे कि जनाब मुख्तार के लश्कर के अंदर मवालियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो इसका क्या मतलब है? यानी गैर अरब बहुत ज्यादा थे। मवाली यानी अजमी, मवाली यानी गैर अरब अफराद। उस माशरे के अंदर वहां पर क्या हुआ कि एक मवाली शख्स ने अरब लड़की से शादी कर ली, और तारीख गवाह है कि बनु उमय्या के दौर में उस शख्स को बुलाया गया, उनके निकाह को बातिल किया गया, लड़की को उससे दूर किया गया, 200 ताजियाने वहां पर उसको लगाए गए। 200 ताजियाने लगाए गए। अहल्लुल हराम व हर्रमुल हलाल। उस माशरे के अंदर क्या था कि इंसान हलाल को हराम समझ रहा था और हराम को हलाल समझ रहा था। हलाल और हराम की तमीज खत्म होकर रह गई थी। और जब माशरे के अंदर ये बहुत ज्यादा फैल जाए ना, तो फिर क्या होता है? तमीज खत्म हो जाती है, वो गुनाह कल्चर बन जाता है। मसलन माजरत के साथ, अगर एक जगह पर बहुत गंदगी रहती है, सफाई का इंतजाम नहीं रहता, तो वहां पर क्या होता है कि बीमारियां भी कम लगती हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो वायरस जो है वो उन लोगों पे कम असर करता है। हाँ, मसलन हमेशा मिसाल दी जाती है, मसलन अगर कोई अमेरिका यूरोप से अगर कोई पाकिस्तान चला जाए, खुदा हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, लेकिन क्या करे, हालात ऐसे है ना, मिसाल देनी पड़ती है। अगर कोई बाहर से पाकिस्तान चला जाता है, क्या होता है? दूसरे दिन उसका पेट खराब हो जाएगा। हाँ, उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, खाना हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि एक साफ सुथरे माशरे से आया, और अब जब गंदगी थोड़ी सी लगी, महसूस की, तो फौरन जिस्म ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन जो अफराद वहां पर रह रहे हैं, हाँ, पानी भी पी रहे हैं, वही ग़िज़ाएं खा रहे हैं, क्यों उनको असर नहीं हो रहा? बिल्कुल उस माशरे के अंदर जहां पर गुनाह कल्चर बन जाता है, गुनाह फैल जाता है, गुनाह की तमीज खत्म हो जाती है, वहां पर गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता, वहां पर हराम को हराम ही समझा नहीं जाता। लेकिन अगर इंसान का नफ्स पाकीज़ा हो, उसका कल्ब ताहिर हो, तवज्जो, कल्ब ताहिर हो, तो इंसान मकरूहात से भी परहेज करेगा। वो हराम जब करेगा तो उसको पशेमानी होगी। हाँ, मसलन जहां पर आपको मिसाल देती हूँ, एक वाकया शहीद मुताहरी का। उस दिन भी आपको बताया कि इमाम खुमैनी ने जिनके बारे में कहा है कि उनकी किताबों को जरूर पढ़ा जाए, बड़ी बामारिफत किताबें, और कोई भी इंसान अगर चाहता है कि वाकई वो सैर सलूक के रास्ते में और मारिफत और इश्क के रास्ते में निकले, तो वो शहीद मुताहरी की किताबों का जरूर मुताला करे। शहीद मुताहरी के भी जो उस्ताद है आयतुल्लाह शिराजी। अब जाहिर है कोई आयतुल्लाह ऐसे ही नहीं बन जाता, आज तो वैसे हर कोई शख्स उठता है और उलमा पर तनकीद करना शुरू कर देता है और बड़े बकवासात किए जाते हैं। बहरहाल जो आयतुल्लाह शिराजी हैं आम इंसान हैं, लेकिन इतना अपने आप को पाकीज़ा किया शहीद मुताहरी के उस्ताद, और वो बयान करते हैं कि जाहिर है जाहिरन जो आयतुल्लाह हो जाता है, जो मर्जे हो जाता है, जो मुज्तहिद हो जाता है, वो इसी वक्त होता है कि जब वो अपने आप को इतना पाकीज़ा कर लेता है। इल्म ही सिर्फ नहीं है, इल्म प्लस अमल, ठीक है, अमल इतना पाकीज़ा हो गया कि हराम तो दूर है, वो मकरूहात को भी अंजाम नहीं देते थे। हमारी तो खैर हालत क्या है कि मकरूहात तो क्या, कि खुदा ना करे कि हम हराम को अंजाम देने वाले हो, लेकिन कितना गुनाह को अंजाम दिया जाता है। रात के वक्त शेर को पढ़ना मकरूह है, जुमे के दिन शेर को पढ़ना मकरूह है। एक मर्तबा आयतुल्लाह शिराजी शहीद मुताहरी बयान करते हैं अपनी किताब के अंदर कि वो आए
तेहरान के अंदर, और जाहिर है उस वक्त ये होता था कि मसलन होटल में नहीं रहते थे, तालिब इल्मों के साथ ही रहते थे। और एक जगह उनकी दावत हुई, दावत के लिए गए तो शहीद मुताहरी कहते हैं कि मैं भी अपने टीचर के साथ वहाँ पर रात के लिए गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी रात को उनके साथ गया, और होता है कि जैसे रात का खाना खाया गया, उसके बाद एक मरतबा शेर और शायरी की महफिल हुई। और जाहिर है तसव्वुर कीजिए कि जब आयतुल्लाह शिराजी वहाँ पर मौजूद होंगे, शहीद मुताहरी होंगे, तो जाहिर है कुछ शेर कोई ऐसे तो नहीं पढ़े जा रहे होंगे। वहाँ पे क्या होगा, मसलन मदह अहले बैत के अशआर होंगे और रोमी के अशआर होंगे, मसलन बेहतरीन जो शायर हैं ख़याम के अशआर होंगे, इस तरह के अशआर को पढ़ा गया। बहरहाल रात थोड़ी सी गुजर गई और शेर और शायरी होती रही। उसके बाद आयतुल्लाह शिराजी रिवायत क्या कहती है कि शहीद मुताहरी ने बयान किया कि मैंने देखा कि मेरे उस्ताद थर थर कांपना शुरू हो गए, और फौरन कहा कि मुताहरी चले हम वापस हॉस्टल वापस चलते हैं। कहा कि मैंने कहा कि आपकी हालत ऐसी क्यों है? कहा कि मैंने अपने आप को पाबंद किया हुआ था कि मैं किसी मकरूह को भी अंजाम नहीं दूंगा। रात को शेर पढ़ना मकरूह है, हालांकि वो ऐसे अशार लहव लाभ वाले नहीं थे, महफिल ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं कि चूंकि रात को शेर पढ़ना ममनू है रिवायात के अंदर, तो मैंने शेर पढ़े हैं, तो फौरन घर चलो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने मकरूह को अंजाम दिया है। बहरहाल घर आए, सो गए, और सुबह हुई, फिर शहीद मुताहरी को जगाते हैं, और जब जगाया तो क्या कह रहे हैं, बाकायदा गिरिया कर रहे हैं, और कहते हैं कि मुताहरी सुनो, अजान फज्र की आवाज आ रही है। कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अजान फज्र की आवाज आ रही है। कहा कि देखो, परवरदिगार ने एक मकरूह को अंजाम देने की वजह से आज की रात नमाज शब की तौफीक को हमसे सल्ब कर लिया। तसव्वुर कीजिए कि हमारी हालत क्या है। नमाज शब तो दरकिनार, नमाज फज्र कोई कितना पढ़ा जाता है और कितनी पाबंदी से पढ़ा जाता है और कितना अव्वल वक्त में पढ़ा जाता है। बहरहाल कि जब गुनाह कल्चर बन जाता है, जब गुनाह आम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर इंसान को वो गुनाह ही नहीं लगता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है, और आज की मुनासिबत से कि रसूल खुदा ने अपने असहाब से इरशाद फरमाया। जाहिर है उस वक्त रसूल खुदा का जमाना, कहा कि कैफ बिकुम इज़ा फसदत निसाउकुम व फसका शबाबुकुम, वो वक्त कैसा होगा कि जब तुम्हारी औरतें फासिद हो जाएंगी और तुम्हारे शबाब, तुम्हारे नौजवान जो है वो फासिद हो जाएंगे। औरतें फासिद हो गई और नौजवान फासिद हो गए। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन जहाँ पर कि रसूल खुदा ने ही इरशाद फरमाया कि औरत का वो फिस्क और उसका फसाद क्या है, कहा कि जब वो बारीक लिबास को पहन कर, देखिए यहाँ पे रिजाल की बात नहीं है, यहाँ पर खास तौर पर हदीस के अंदर औरतों की बात हो रही है। फसदत निसाउकुम, कि जब तुम्हारी औरतें फसाद में मुब्तला हो जाएंगी। माशरा उसी वक्त फसाद में मुब्तला होता है कि जब औरतें, माजरत के साथ, जब औरत फासिद हो जाएगी। कहा कि औरत का फसाद क्या है, औरत फसाद कैसे करती है। और आज आप देख लें कि सब कुछ जितने गुनाह हैं, गुनाह में मर्द जाहिर है गुनाह कर रहा है, लेकिन उसका सबब क्या बनता है, औरत बनती है। औरत का फसाद क्या है, हिजाब तो दूर की बात, जाहिर है उसने हिजाब नहीं पहना, उसने इतना बारीक लिबास पहना कि उसके फिगर्स नुमाया हो रहे हैं, तो ये औरत का फसाद है। कहा कि मर्द की गैरत का पता किस चीज से चलता है, उसकी औरत के लिबास से पता चलता है कि मर्द कितना गैरतमंद है। बहरहाल मैं नहीं कहना चाहती कि कितने घरों में गैरत ही खत्म हो चुकी है। बहरहाल रसूल खुदा ने क्या इरशाद फरमाया, देखिए हम आम तौर पर मतलब किसी को इंफरादी तौर पर तबलीग नहीं कर सकते, लेकिन मिंबर एक ऐसी जगह है कि जहां से हम आसानी के साथ तबलीग कर सकते हैं, और इसमें मेरे ख्याल में बुरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से उन चीजों को वेलकम करना चाहिए कि वाकईन एक अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को बताया जा रहा है, और यही इन मजालिस का मकसद है।
रसूल खुदा क्या कह रहे हैं, कैफ़ा बिकुम इज़ा रअयतुम, जब तुम देखोगे ऐसे जमाने को, तवज्जो, ऐसे जमाने को कि जब औरतें फासिद हो जाएंगी और तुम्हारे नौजवान फासिद हो जाएंगे। फिर वही फासिद का मतलब क्या है? फासिद का मतलब है कि जो अलल ऐलान गुनाह करे, उस गुनाह को करने में शर्म महसूस ना करे। सहाबा ने क्या कहा? कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा होगा, यकून ज़ालिक, क्या ऐसा होगा? रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, शर्रुम मिन ज़ालिक, इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कहा कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? इससे ज्यादा ये बुरा होगा कि लम तअमुर बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर। इससे ज्यादा बुरा ये होगा कि तुम्हारे अंदर ये जुर्रत खत्म हो जाएगी कि तुम अम्र बिल मारूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो। आप सोचिए कि अगर एक बहुत गुनाह की गैदरिंग है, एक मिक्स गैदरिंग है, वहां पे बेचारा कोई एक दीनदार चला जाए तो क्या उसे ये जुर्रत होगी? हाँ, क्या उसे ये जुर्रत होगी कि वहां पर अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे? कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है, ये क्या चल रहा है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। रसूल खुदा ने कहा कि उससे ज्यादा बुरा ये होगा कि लम तअमुर बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर, कि तुम क्या है कि तुम अम्र बिल मारूफ नहीं कर सकोगे और नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सकोगे। कहा कि फिर सहाबा ने हैरत की, क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, यकून ज़ालिक, क्या ऐसा भी होगा? यानी उनको यकीन ही नहीं आता था। सहाबा को कोई लेकर आए आज के माशरे में, उन्हें सब यकीन हासिल हो जाएगा कि वाकयान ये सब कुछ हो सकता है। रसूल खुदा क्या कहते हैं? शर्रुम मिन ज़ालिक, इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कहा कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? कहा कि कैफ़ा बिकुम इज़ा अमरतुम बिल मुनकर, इससे ज्यादा बुरा क्या है कि हुक्म ये दिया जाए, हक तो यही है ना, हुक्म इस्लाम यही है कि तुम मारूफ का, नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। कहा लेकिन उस वक्त जमाना ऐसा आ जाएगा, कैफ़ा बिकुम इज़ा अमरतुम बिल मारूफ व नहयतुम अनिल मारूफ, वो जमाना ऐसा होगा कि तुम बुराई का हुक्म दे रहे होगे और नेकियों से मना कर रहे होगे। और फिर देखिए कि ये कैसे मुमकिन है कि नेकियों से मना किया जा रहा हो, नेकियों से मना किया जा रहा हो। आज अगर बेटी हिजाब करती है, मैं इसलिए हिजाब की बार बार मिसाल देती हूँ कि हम सब खवातीन बैठी हुई है ना। अब ज़ाहिर मर्दों की तो मिसाल नहीं देंगे, मर्दों के मजमे में वो मौलाना का काम है कि वो मर्दों के मसाइल उन्हें बताएं, हम तो खवातीन की बात करेंगे ना। अगर बेटी हिजाब करती है और कोई ये ना कहे कि ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम है, मैं जब कुरान की क्लास लेती हूँ, और अभी नहीं, मसलन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चों को, हम जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं। और बच्चों को कहा जाता है कि मसलन आपने हिजाब करना है, अच्छा कैसे हिजाब करना है? आप अपने बालों को कवर करें, आप ये चीज दिखा नहीं सकते, बच्चे मान जाते हैं। लेकिन बखुदा मुझे खुद बच्चों ने बताया है कि हमारी माएँ हमें कहती है कि हिजाब ना करो। जब उन्हें मौसीकी का बताया जाता है कि भाई गाना सुनना बुरी बात है, हराम है, हाँ हराम है, मुझे खुद बच्चों ने बताया कि जब बाबा ने गाड़ी में गाना लगाया, हमने उन्हें मना किया, तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसी फजूल बातें हैं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ये ऐसी मसलन मौलानाओं की बातें, बस कुरान पढ़ो और बस उससे सरोकार रखो, ये कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले कैफ़ा बिकुम, उस वक्त तुम्हारी हालत कैसी होगी कि जब मुनकर का हुक्म दिया जाएगा, मारूफ से मना किया जाएगा। फिर वहां साहबा ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे कैसे मुमकिन है कि ऐसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? रसूल खुदा ने कहा कि इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा वो क्या है? वो वही है कि जब गुनाह कल्चर बन जाए। क्या कहा कि वो ऐसा जमाना होगा, तुम्हारी हालत कैसी होगी कि जब जो है मुनकिर को मारूफ समझा जाएगा, मारूफ को मुनकिर समझा जाएगा। यानी इंसान बुराई करेगा और उस पर फख्र महसूस करेगा और इसी चीज को क्या कहेगा, यही अच्छी बात है, यही अच्छी बात है। वही जो कल मिसाल दी थी कि एक दफा तो ये है ना कि हम मसलन बुराई करते हैं, गिबत की, झूठ बोला, लेकिन क्या कहते हैं, क्या करें, छूटता नहीं है, चाहते हैं कि मसलन गिबत ना करें, चाहते हैं कि झूठ ना बोले, लेकिन कभी भी जो कल भी कहा था, उस दिन मजलिस में कहा था कि तौजीह है, गुनाह ना करें, कभी भी ये ना कहें कि हाँ यही अच्छी बात है, यही हुक्म इस्लाम है। मसलन
उलमा ने मिसाल दी, मैं नहीं मिसाल दे रही, किसी आलिम की ये मिसाल है। उन्होंने कहा कि देखिए कि गुज़िश्ता ज़मानों में अगर किसी को ये कहा जाता था कि तुम्हारी बेटी डांसर है तो ये बहुत बड़ी गाली समझा जाता था। तुम्हारी बेटी जो है वो गाना गाती है तो इसे गाली समझा जाता था। जो भी मुहज्जब फैमिलीज थी वहां पर ये चीज बहुत बुरी समझी जाती थी। उस वक्त मारूफ था, मुनकिर था। लेकिन आज आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, हम भी इसी मुआशरे के अंदर रहते हैं। आज क्या है कि खुदा ना करे कि अगर किसी की बेटी डांस कर रही है या गाना बहुत अच्छा गाती है तो क्या कहा जाता है, बड़े फख्र से बताया जाता है कि मेरी बेटी गाना इतना अच्छा गाती है, उसकी आवाज इतनी अच्छी है। खुदा के लिए अगर आवाज अच्छी है तो उस आवाज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदा में लगाएं, उसको गिना में ना लगाएं, ऐसी चीज में लगाएं जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए, ना ये कि वो आपके लिए भी और आपके माँ बाप के लिए भी अजाबे कब्र बन जाए। सलवात पढ़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुमला है, इमाम क्या कहते हैं, वो सीरत सीरत जद्दी व अबी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाबा की सीरत को और अपने नाना की सीरत को दोबारा जिंदा करूं। बाबा की सीरत क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम भी जब हुकूमत में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ मुनकिरात के खिलाफ क़याम किया था। हाँ, बहुत ज्यादा मिसालें हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यही कहा था कि जिसके घर में बैतुल माल जा चुका है उस बैतुल माल को मैं वापस लूंगा। अगर वो औरतों की जहेज में जा चुका है तो उसको वापस लिया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुछ हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाहात की हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चाहते हैं कि उसी तरीके से माशरे को एक वाक़ियन पाकीज़ा और इलाही और मोहम्मदी और अलवी माशरा बनाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ हम सब जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम बैतुल माल, और पहले भी यही होता था खुलफा के दौर में कि बैतुल माल को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम किया जाता था। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी जब आए तो जाहिर है जो बैतुल माल मिलता है, टैक्स आता है जो मुख्तलिफ जगह से, जो हुकूमत की कमाई है, इमाम अलैहिस्सलाम उस बैतुल माल को जो कि आम लोगों का हक है उसे लोगों में तकसीम करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक ही बहन है, 4 भाई हैं, एक बहन है बीबी उम्मे हानी, जिनके घर से सफर मेराज शुरू हुआ था। उम्मे हानी ज़ाहिर अबू तालिब की बेटी है और कोई ये एतराज ना करे, जाहिर है कि मसलन जब उम्मे हानी ने ऐसा एतराज किया तो ये तसव्वुर ना करे कि उम्मे हानी ऐसी थी। कई मर्तबा ये बातें इसलिए बयान हुई हैं कि वो लोगों के सामने इस चीज को बयान करना चाहते थे कि हक क्या है और बातिल क्या है। उम्मे हानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और उनकी कनीज भी आई। इमाम ने 3 दिरहम उम्मे हानी को दिए बैतुल माल से और 3 दिरहम उनकी कनीज को दिए। रिवायत के कहती है उम्मे हानी फौरन, मौला ये क्या किया, मैं खलीफा वक्त की बहन, मैं एक अरबी खातून, मेरी कनीज एक अजमी खातून, गैर अरब औरत, हाँ, और उस जमाने में भी जैसा वही कुरान की आयत कहती है कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक परहेजगार वही है, इज्जत वाला वही है जो तुम में से सबसे ज्यादा बातकवा है। वहां पर उम्मे हानी क्या कहती है कि मेरी कनीज एक गैर अरब खातून, उसको भी आपने 3 दिरहम दिए और मुझे भी 3 दिरहम दिए। आखिर ऐसा क्यों है? आप खलीफा वक्त हैं, मेरा बैतुल माल में से हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या जवाब दिया कि उम्मे हानी खामोश रहो, मैंने कुरान के अंदर, रसूल की सुन्नत के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि किसी अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल हो। और वहां पर एक और वाकया मिलता है जनाबे अकील का। जनाबे अकील कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई हैं, खलीफा वक्त है इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम वक्त हैं।
اور عقیل آئے ان کے پاس اور امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر اس کو کوٹ کیا کہ امام کہتے ہیں کہ عقیل میرے پاس آئے اور کیا مجھ سے سوال کیا؟ صرف 3 سا گندم کا. 3 سا کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ، یا اگر اس کو جتنا بھی زیادہ کر لیں کتنا ہوگا؟ 3 کلو گندم کر لیں. کیا سوال کیا؟ کہا کہ مولا مجھے 3 سا گندم دی جائے. 3 سا. اور امام کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ عقیل کے آنکھوں کے نیچے بھوک کی وجہ سے حلقے پڑے ہوئے تھے اور اس کے بچوں کا بھوک کی وجہ سے عجیب حال تھا. یعنی تصور کیجئے کہ اگر امام علی علیہ السلام دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کوئی برائی بھی تو نہیں تھی. مثلا امام علیہ السلام ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں. کئی مرتبہ روایت کیا کہتی ہے، کئی مرتبہ عقیل امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اب جب آخری مرتبہ آئے نا، جہاں جو امام علی علیہ السلام ادھر بیان کر رہے ہیں، امام کہتے ہیں کہ عقیل بیان کر رہے ہیں اور میں خاموش ہو کر سن رہا ہوں. امام نے کہا کہ عقیل نے یہ سمجھا فَظَنَّ أَنْ أُبِيعَهُ دِينِي، عقیل نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنا دین اسے بیچنے لگا ہوں، یعنی اسے گندم دینے لگا ہوں. تو گویا امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ عقیل نے یہ گمان کیا کہ میں اپنے دین کو بیچ کر رکھ دوں گا. لیکن علی اپنے دین کو کیسے بیچے؟ اور عقیل جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مولا مجھے کچھ دے دیں گے، کہ ظاہر میں اتنا رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں کہ مولا مجھے کچھ دے، ہمارا بھی کوئی بہن بھائی ہمارے پاس آئے اور گڑ گڑائے تو فوراً دل کتنا نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کی ضرور ہیلپ کریں، اسے دیا جائے. تو وہاں پر امام نے کیا کیا؟ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا شاید واقعہ. امام نے کیا کیا؟ پاس میں ایک دیا جل رہا تھا، امام نے ایک لوہے کی سلاخ کو لیا اور وہاں پر رکھ دیا اس سلاخ کو گرم ہونے کے لیے. امام خاموش ہے اور عقیل اپنا درد دل بیان کرتے جا رہے ہیں. جب وہ سلاخ گرم ہو گئی تو امام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس لوہے کی سلاخ کو عقیل کے نزدیک کیا. امام نے جلایا نہیں. امام رؤوف امام ہے، مہربان امام ہے، امام کسی پر ظلم نہیں کرتے. امام کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس سلاخ کو عقیل کے قریب کیا. اس کی حرارت اور اس کی تپش جب عقیل کو محسوس ہوئی فزجا، عقیل نے فوراً بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا کہ یا علی کیا کر رہے ہیں، مجھے جلانے لگے ہیں آپ. امام علیہ السلام نے فوراً کیا کہا کہ اے عقیل یہ تو دنیا کی حرارت ہے، دنیا کی حرارت ہے. ہاں، حالانکہ امام نے لگائی نہیں ہے. اے عقیل یہ دنیا کی حرارت ہے اور ابھی تمہیں محسوس ہوئی ہے اور تم نے زجا و نالا کرنا شروع کر دیا، بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا. تو سوچو کہ آخرت کا عذاب کیا ہے. تم چاہتے ہو کہ میں اپنی دین کو بیچ کر آخرت کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کے اندر بھی انشاءاللہ کہ ان دعاؤں کو ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں کہ تاکہ پتہ چلے کہ امام ان دعاؤں کے اندر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. عربی اس لیے پڑھیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو امام کے دہن سے نکلے. میں بعین ہی انہی الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہوں، لیکن ترجمہ اس لیے پڑھیں کہ تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو. دعائے کمیل کے اندر بھی امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں آخرت کے اس عذاب کو کیسے برداشت کروں گا کہ دنیا کے عذاب پر جس کی قلیل مدت کثیر بقاؤہ. دنیا کا عذاب، دنیا کی مشکلات وہ ہیں کہ جن کی مدت بہت قلیل ہے، وہ بہت جلدی وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان پر میں صبر نہیں کر سکتا. تو سوچئے کہ میں آخرت کے عذاب پر کیسے برداشت کروں گا کہ جسے پروردگار کے قہر اور غضب نے بھڑکایا ہوا ہوگا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، توجہ، لو کنتم توقنون بخیر الآخرہ، اگر تمہیں یقین ہو آخرت کے خیر کا،
आखिरत के खैर का, दुनिया के खैर का नहीं। हमें दुनिया की खैर और इसकी भलाई का पता है, ऐसा करेंगे तो इससे हमारी जिंदगी आराम में होगी, ऐसा करेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बड़ी आरामदेह और ऐशो इशरत वाली होगी। लाओ कुंतुम तूकिनूना बिखैरिल आखिरत, अगर तुम्हें आखिरत के खैर का यकीन हो जाए, यकीन हो जाए। माए बच्चों को रटाती तो है ना कि उसूल दीन क्या है, फुरूए दीन क्या है, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, जिस बच्चे से पूछे सबको याद होगा। लेकिन रसूल क्या कहते हैं, पता तो है, लौ कुंतुम तूकिनूना बिखैरिल आखिरा, अगर तुम्हें आखिरत के खैर का यकीन हो जाए तो 100% क्या होगा, ला असर तुम बिखैरिल आखिरा, तुम दुनिया की जिंदगी को कुछ अहमियत ही ना दो, तुम हमेशा आखिरत के लिए ही काम करते हुए नजर आओ। जब यकीन हो जाए, यकीन हो जाए इंसान को, बुढ़ापे में यकीन हो जाता है, जब पता होता है ना कि अब कुछ भी नहीं रहा, हाँ, तो फिर इंसान क्या होता है, खवातीन भी बाहिजाब हो जाती हैं, मर्द भी दाढ़ी रख लेते हैं, नमाजें भी शुरू। उस वक्त सब कोई पूछ रहे होते हैं कि मसलन, माजरत के साथ जिसने इन दिनों मसला पूछा है, मैं उनको नहीं कह रही, एक जनरल बात कर रही हूँ कि उससे पूछा जाता है कि नमाजों को कज़ा कैसे करें, हाँ, अपने मसलन विरासत को तकसीम कैसे करें, ये क्या करें, वो क्या करें। हाँ, वो एक फारसी का शेर है कि हर कोई फाक बूदन दर जवानी शेवाए पैगंबरीस्त, के वरना हर बुगरी मी शवत दर पीरी मी शवत परहेजगार, के जवानी में पाकीज़ा होना अहमियत रखता है। जो जवान होता है ना, उसके आमाल की कदर कीमत है। वरना हर गुबरी दर पीरी मी शवत परहेजगार, हर भेड़िया भी बुढ़ापे में आकर परहेजगार हो जाता है। बुढ़ापे में परहेजगार होना, आपको ये तसव्वुर ना करे कोई बुढ़ापे में परहेजगार हुआ तो ये बुरी बात है। अच्छी बात है कि इंसान मौत से पहले बेदार हो जाए, लेकिन जो कद्र कीमत है, जो अहमियत है, वो किस चीज की है, वो जवानी के अमल की है। हम सब जवान हैं, कोई भी बूढ़ा नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ, और कोई भी अपने आप को कहेगा भी नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ। तो जब सब जवान है तो इंशाअल्लाह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में सब अमल की तरफ कोशिश करेंगे। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक चीज बयान करना चाहूंगी, बहुत आप लोगों को डरा लिया, कि अमर इब्ने हुरैस एक शख्स है और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। और जैसा कि उसने भी बयान किया कि आइम्मा की खिदमत में लोग आते थे और आकर अपना अकीदा, अपना दीन बयान करते थे। अमर इब्ने हुरैस भी इमाम की खिदमत में आया और उसने आकर अपना अकीदा बयान किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुम्हारा अकीदा ठीक है, अकीदा ठीक है तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। जब वो जाने लगा खुश होकर, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अकीदा तो ठीक है, लेकिन अपने दीन को सालिम कैसे रखोगे, इसको कायम कैसे रखोगे। ठीक है, अभी मेरा अकीदा ठीक है, अभी मेरा अमल ठीक है। और वही बीबी की जो उस दिन भी बयान किया था कि बीबी ने कहा था कि वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना तुम इस्लाम की हालत में मरना। नमाज के कुनूत में हम यही दुआ करते हैं कि परवरदिगारा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इस दीन पर हमें साबित कदम रखना, मैं इस सिराते मुस्तकीम से डगमगा ना जाऊं। बहुत मुमकिन है कि इंसान सीधा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा आए कि वो सिराते मुस्तकीम से कहीं और दूर चला जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि बताओ, अपने दीन को सालिम रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए क्या करोगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दो चीजें बयान की। इंशाअल्लाह के इस अशरे का जो पैगाम है वो यही इमाम का जुमला है। इमाम ने दो चीजें बताई कि अपने दीन को सालिम कैसे रखोगे। कहा सबसे पहली चीज, कभी तकब्बुर न करना, तकब्बुर से अपने आप को दूर रखना, बड़ाई न करना, अकड़ न हो किसी चीज पर भी तकब्बुर, अपने इल्म पर तकब्बुर, अपने हुस्न पर, अपनी फैमिली पर, बाप भाई बेटा, मेरा ये, मेरा घर ये, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, कभी भी तकब्बुर न करना। अगर परवरदिगार की नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं तो वहां पर क्या किया जाए,
तवक्कुल किया जाए, परवरदिगार का शुक्र बजाया जाए। हम हमेशा ये करते हैं कि जो कुछ अगर अच्छी बात होती है तो उसको अपने से निस्बत देते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब इल्म है मेरा, इतनी मैंने तरक्की की, ये हुआ, मेरी शोहरत है, फलान है, तो किस वजह से मैंने ये किया। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो पता नहीं ये क्यों हो गया। हाँ, तो इमाम ये बताना चाहते हैं कि अगर कुछ भी तुम्हारे पास है तो इसको अताए परवरदिगार समझो, अताए परवरदिगार समझो। तुम कुछ भी नहीं हो, एक लहजे के अंदर परवरदिगार अगर ना चाहे तो तुम्हें दुनिया के सामने जलील ख्वार करके रख दे। ये सब कुछ जो है तुम्हारे पास, सब कुछ जो है ये अताए परवरदिगार है, ये लुत्फ आइम्मा है। अगर गुनाह छुपे हुए हैं, लोगों के दिलों में इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत है, तुम तरक्की कर रहे हो, तुम्हें दौलत मिल रही है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं, तुम्हारी औलाद तरक्की कर रही है, माशरे के अंदर एक मकाम है, इसे सब अताए परवरदिगार समझो। सब कुछ अताए परवरदिगार है, ये लुत्फ परवरदिगार है। अगर परवरदिगार की तौफीकात ना होती, उसका लुत्फ ना होता, उसकी अता ना होती, तो कभी भी तुम ये हासिल न कर सकते। कभी भी तकब्बुर को अपने पास ना आने दो। अगर कोई ख्याल भी आए तो फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान को अपने आप से दूर कर दो। दूसरी क्या चीज है? दूसरी, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। इमाम ने दो ही हल बताए हैं, एक तकब्बुर न करो, दूसरा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। ये जुबान ही वो है जो वो कहते हैं कि कभी तख्त पर भी बिठा देती है और कभी तख्ते पर भी बिठा देती है। हाँ, तख्त पर भी बिठाती, तख्ते तक ले जाती है। उलमा ने इसी जुबान से, आप गुनाह कबीरा की किताबों को पढ़ें कि कितने गुनाह जो है वो कहाँ से सरजद होते हैं, हाथों से बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो गुनाह सरजद होते हैं, उलमा ने जो तादाद, बाज उलमा ने तो इतना कह दिया कि 300 गुनाह हैं जो सिर्फ इसी जुबान से अदा होते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा हम्माम के अंदर मुत्तकीन की सिफत को बताया था, तो वहां पर जो सबसे पहली सिफत मोमिन की और मुत्तकी की बताई थी, तो वो ये कहा था कि मंतिक़ुहुमुस सवाब, उनकी गुफ्तगू जची तुली होती है, वो फजूल नहीं बोलते, लहव लाब नहीं बोलते, सोच समझ कर बोलते हैं। इंशाअल्लाह के परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम करबला वालों के सदके हम सबको दीन की मारिफत अता करे, दीन का इश्क अता करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर अमल पैरा होने की तौफीक़ात अता फरमाए। इमाम ने भी ये फरमाया था ना कि अगर दीन इसी तरह कायम रह सकता है कि सिर्फ मेरे कत्ल से, इल्ला बिक़त्ली फयासयुफु खुज़ीनी, तो ऐ तलवारों आओ मुझ पर टूट पड़ो। अगर दीन इसी सूरत में कायम रह सकता है, सालिम रह सकता है कि हुसैन राह खुदा में शहीद हो जाए, तो ऐ तलवारों आओ मेरे बदन को टुकड़े टुकड़े कर दो, हुसैन कुछ भी न कहेंगे। आज 9 मुहर्रम है, आज की रात शब आशूर है, बड़ी मुसीबत की रात है, और जो सुबह आशूर तुलू होती है वो अजान अली अकबर से तुलू होती है। आज के दिन को हमने मखसूस किया है हुसैन के अली अकबर से। रिवायात क्या कहती हैं कि पूरे रास्ते इमाम अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकले, मक्का आए, मक्का से करबला आए, इस पूरे रास्ते में इमाम अलैहिस्सलाम का एक खास मुअज्जिन है जो अजान देता है। उस मुअज्जिन का नाम मसरूक बताया जाता है। जगह जगह पर जब भी नमाज का वक्त होता है मसरूक अजान देता है। लेकिन क्या कहना, सुबह आशूर का मसरूक ने चाहा कि एक मर्तबा अजान आशूर को अदा करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन पीछे हटाया, मसरूक आज तुम अजान नहीं दोगे, आज के दिन अजान मेरा बेटा अली अकबर देगा। क्या कहना इस जवान का, शबीह रसूल, 18 साल की जवानी। आयतुल्लाह माजिंदरानी के बारे में मिलता है कि वो पैदल करबला की जियारत के लिए आया करते थे। एक मर्तबा शब जुमा
पैदल चलते हुए आए और शबे जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आ गई। इन्होंने अपने सारे काफिले वालों से कहा कि नमाज को जमात के साथ अदा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मजलिस हुसैन को बपा करते हैं, क्योंकि शबे जुमा है, बहुत ज्यादा फजीलत है कि शबे जुमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइल को बयान किया जाए। आयतुल्लाह माजिर दरानी कहते हैं कि मैंने अपनी किताब को खोला कि आज कौन से मसाइल को बयान करूं, क्या निकला, सामने मरसिया अली अकबर निकला। मैंने अली अकबर के मरसिये को पढ़ना शुरू किया। रात हुई, मैं अपने सराय में चला गया, रात हुई, ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आकर कहा कि ऐ माजिन दरानी, हमने तेरे पुरसे को कबूल किया है, लेकिन ऐ माजिन दरानी, जब भी शबे जुमा हो तुम हमारे हरम में आओ, अली अकबर के मसाइब को ना पढ़ना। कहा क्यों मौला, अली अकबर के मसाइब को क्यों ना पढ़े? कहा तुम्हें नहीं मालूम है, शबे जुमा मेरी मां बकी को छोड़कर मेरी कब्र की ज़ियारत को आती है। अरे जब से तुमने अली अकबर के मसाइब को पढ़ा है, मेरी मां ने इतना गिरिया किया कि अभी तक वो गश के आलम में है। अल्लाह, कैसे मसाइब अली अकबर को बयान किया जाए, कैसे बयान किया जाए? मुख्तार ने जब कातिलों से पूछा था ना कि बताओ करबला में हुसैन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था, जवाब मिला अली अकबर प्यारे थे। कहा कि कैसे तुम्हें पता चला? कहा कि करबला की रेत का जर्रा जर्रा गवाह है कि हुसैन को जैसा प्यार अली अकबर से था वैसा किसी और से नहीं था। जब अली अकबर बाबा के पास इजाजत के लिए आए, बाबा ने फौरन इजाजत दी। अली अकबर ने चाहा कि वो घोड़े पर सवार हो और एक मर्तबा मकतल की तरफ जाए। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, एक मर्तबा घोड़े ने चलना शुरू किया। रिवायत के अल्फाज क्या है? हुसैन ने भी पीछे पीछे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। महलन महलन जा बुनैया, ऐ मेरे बेटे जरा आहिस्ता चलो। उलमा ने लिखा कि अली अकबर बड़ा बादक बेटा है। जब देखा ना कि हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं, अली अकबर फौरन घोड़े से उतरे। क्या कहते हैं? ऐ बाबा, ऐसे मैं मकतल में नहीं जाऊंगा। बाबा कैसे मुमकिन है, मैं घोड़े पर सवार हूँ, आप पैदल पीछे आ रहे हो। और ऐ बाबा, जब मैं घोड़ा चलाता हूँ ना, एक नकाब पोश मेरे आगे आती है। ऐ अली अकबर, घोड़ा तेज न चलाना, मेरा हुसैन बूढ़ा है। ऐ बाबा, मुझसे इस तरह मकतल में जाया न जाएगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर से क्या कहते हैं? नहीं अली अकबर, तुम सवार हो, सवार हो। काश अली अकबर तेरा कोई बेटा होता, तू समझता कि बाप के दिल का दर्द कैसा होता है। अली अकबर जाओ, आज बाबा तुम्हारी जंग को देखना चाहते हैं। रिवायत क्या कहती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक टीले पर खड़े हो गए, अपने बेटे की जंग को देख रहे हैं। इधर फिजा दरे खेमा पर खड़ी है। जो भी मकतल में होता है वो बीबी ज़ैनब को बताती है, क्योंकि बीबी का ये मकाम नहीं है कि वो खुद खेमों से बाहर आए। बीबी सिर्फ 2 मर्तबा अपने खेमे से बाहर आई। एक जब अली अकबर का लाशा आया, दूसरा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमों से रुखसत होने लगे। हाय बीबी इन 2 मकामात पर अपने खेमे से बाहर आई, वरना बीबी का तरीका क्या था? फिजा दरे खेमा पर खड़ी हो जाती थी। जो कुछ मकतल में होता था वो बीबी को बताती थी। अब फिजा ने बताना शुरू किया। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मकतल की तरफ जा रहे हैं। फिजा ने सर को पीटना शुरू किया। बीबी कहती है फिजा क्या देख रही हो? कहा बीबी बर्दाश्त न कर पाएगी। जिधर जिधर अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हैं, उधर उधर हुसैन मुड़ते चले जाते हैं। ऐ परवरदिगार, गवाह रहना, अब जब मैंने जिसको भेजा है वो शबीह रसूल है, रफ्तार में, किरदार में, गुफ्तार में बहू मेरे नाना की शबीह था। अब थोड़ी देर गुजर गई, अली अकबर बाबा को नजर न आए। अरे हुसैन जैसा साबिर भी परवरदिगार की बारगाह में दस्ते दुआ को बुलंद करता है। क्या कहा? ऐ याकूब को यूसुफ से
کہتی ہے کہ جب کوئی شہید جاتا تھا نا مقتل میں اس کا لاشا ہی واپس آتا تھا، لیکن علی اکبر وہ واحد جوان ہے، 2 مرتبہ واپس آئے۔ اب بابا کے پاس آئے اور کیا کہا، اے بابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، ارے باپ ہو سامنے، بیٹا خواہش کر رہا ہو اور باپ اس خواہش کو پورا نہ کر سکتا۔ علماء نے یہاں پر کیا لکھا، کہا یہ حسین کی مصیبت کا سب سے بڑا علماء تھا علی اکبر 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں، بابا کے پاس پانی نہیں ہے، کہتے ہیں علی اکبر جاؤ مقتل میں دوبارہ جاؤ، ابھی میرے نانا تمہیں سیراب کریں گے، بابا علی آئیں گے، ماں زہرا آئیں گی، ابھی تمہیں سیراب کریں گے۔ اجرکم عند اللہ، علی اکبر جب دوبارہ آئے نا، دوبارہ مقتل میں آئے، اب حسین ابن نمیر سامنے آیا، اس نے ایک جنگی حربہ کیا، اس نے علی اکبر کی جنگ کی تعریف کرنا شروع کر دی، مرحباً پہ کہا یا فتح، اے جوان تیری جنگ کا کیا کہنا، اے جوان تو ایسی جنگ کر رہا ہے جیسے تیرے دادا علی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کیا کہتا ہے، اے علی اکبر ذرا خیموں کی طرف تو دیکھو، جو ہی علی اکبر نے خیموں کی طرف دیکھا، ایک نیزہ سینہ علی اکبر نے پیوست کر دیا۔ ارے اس کا نیزہ پیوست کرنا تھا کہ کسی نے پڑھ کر پیچھے سے گرز مارا۔ اب جو روایت کہتی ہے، فارسمی کی روایت ہے کہ جب گرز لگا، جوان کا خون ابلنے لگا، علی اکبر کا سر گھوڑے کی گردن میں آ گیا، جوان کا خون جو ہی گھوڑے کی آنکھوں میں گرا، روایت کیا کہتی ہے، گھوڑے نے رستے کو ترک کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ خیام میں لے کر جاتا، گھوڑے کا رخ اشکیا کی طرف ہو گیا۔ جب اشکیا کے درمیان علی اکبر آ گئے، ہر طرف سے حملہ ہوا۔ یہ جو ہم مسائل میں سنتے ہیں کہ مولا گھٹنیوں کی بات چل کر گئے، ارے کیوں چل کر گئے، ارے میرے مولا کئی مرتبہ گرا، کئی مرتبہ اٹھا، گھوڑوں کے سموں کے اندر رستہ بناتے ہوئے علی اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، ارے مجھے کوئی میرے علی اکبر تک پہنچا دو، کوئی مجھے میرے علی اکبر تک پہنچا دو، مجھے نظر نہیں آ رہا، گھوڑوں کے سموں کے نیچے پاؤں میں سے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے میرے مولا رستہ بنا کر علی اکبر کے سامنے گئے۔ خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے، جوان بیٹا ہو، بوڑھا باپ ہو، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ اجرکم عند اللہ، ابن زیاد کے سامنے جب سر حسین رکھا ہوا تھا نا، دندان حسین پر چھری مارتا تھا اور ساتھ کہتا جاتا تھا، اے حسین تو بڑا جلدی بوڑھا ہو گیا۔ ارے زینب نے جب اس جملے کو سنا، بی بی سے رہا نہ کیا، بی بی نے کیا کہا، ارے میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، یہ علی اکبر کی شہادت تھی، جوان بیٹے کی موت نے میرے حسین کو بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ اجرکم عند اللہ، باپ بیٹوں سے کیسے پیار کرتے ہیں، ایسے ہی پیار کرتے ہیں نا، اپنے لبوں کو رخساروں پر رکھتے ہیں۔ ہائے میرا صابر امام، جب علی اکبر کے سرہانے آیا، ابھی علی اکبر میں کچھ جان باقی ہے، حسین نے اپنے لبوں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیا۔ اے علی اکبر باندھ کر دنیا بنا، اے علی اکبر اب جینے کا مزہ نہیں رہا، ارے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا۔ علی اکبر بابا چاہتے ہیں تمہیں خیموں میں لے کر جائیں۔ اجرکم عند اللہ، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی ایک جملے میں کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اتنا سمجھ لے، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر بوڑھا باپ اکیلا بیٹوں کے لاشوں کو، اکیلا بیٹے کے لاشیں کو اٹھاتا ہے۔ علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، حسین نے کیا کہا، اے علی اکبر
अकबर, थोड़ा जोर तुम लगाओ, थोड़ा मैं लगाता हूँ। 18 साल की जवानी है, बूढ़ा बाप अकेला कैसे उठाए? अली अकबर ऐसा करो कि अपनी बाहों को बाबा के गले में डाल दो। अली अकबर ने एक बाजू तो डाला, लेकिन दूसरा बाजू सीने पर मौजूद है। अली अकबर सीने से हाथ तो क्यों नहीं उठाते? बाबा सालिम ने नेज़ा मारा, पर्ची का पल तोड़ दिया, कहता था अरे देखते हैं हुसैन कैसा सामने। हुसैन एक सालू जमीन में रखा, एक सालू सीना अली अकबर में रखा। बाबा अली आइए, वो दादा इब्राहिम आइए, मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई। ए बाबा देखिए, हुसैन के सब्र का इम्तिहान है। जवान के सीने से पर्ची का पल निकालना है। एक मर्तबा जो पर्ची में हाथ डाला, सीना अली अकबर। होते भी जाए, दुआएं भी मांगती जाए। आज इस विषय का आखिरी हिस्सा है। जवान बाप, जवान लाशा, बूढ़ा बाप कैसे उठाए? अब जो अली अकबर की लाश को उठा के बचाओ। इमाम ने किसी और को आवाज नहीं दी, बनु हाशिम के छोटे छोटे बच्चों को आवाज दी। ए बच्चों आओ, आज हुसैन की मदद करो। जवान का लाशा उठाया नहीं जाता। परवरदिगारा, तुझे मसाए में अली अकबर का वास्ता। परवरदिगारा, तुझे हुसैन की इस मुसीबत का वास्ता, जिसने हुसैन को बूढ़ा करके रख दिया। ए परवरदिगार, जिनकी दुआएं यहाँ पर मांगी जाए, उन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब करना। परवरदिगारा, हमारे इन मजालिस को शर्फ कबूलियत अता करना। इन आंसुओं को इतनी तौफीक देना कि ये रुमाली सैयदा की जिल्लत बन जाए। परवरदिगारा, ये गिरिया, ये मजालिस हमारे लिए ज़रिया निजात करार